Hello everyone, how are you all? I hope you are all good. So students, in this video we will be discussing important current affairs for 9th of November. The session will be quite interesting, and in this video students, a total of 17 important current affairs will be discussed of utmost importance that will be benefiting in your competitive exams. In this video we will be talking about the 17th edition of Urban Mobility India Conference and Expo. Then we will be talking about Aditri 3.0 challenge and DISC 13 during the Swalamban 3.0. Then next thing we will be talking about is an MOU that has been signed between Indian Railways and Switzerland. Next is Australia. They have been selected as the country of focus for IFFI 2024. What is this? Where was this held? What is the reason of it? What is the aim, objective? We will be discussing all these things in detail. Then Brazil, they became the second BRICS country to not join the China's BRI. What is BRI? Border Road Initiative. We will be discussing all these things in detail. So stay tuned with us till the end. This will be a quite an interesting session. Also students, if you are new to our channel and haven't subscribed to us, do subscribe as we are one-stop solution for current affairs. Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find our Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will be getting daily, weekly and monthly current affairs on regular basis. You can use code VIKAS10 to get additional 10% discount while purchasing the course. This video is available both in English and Hindi. The timestamp for both English and Hindi are mentioned in the description of each video. You can contact us on the number provided or mail provided. Also follow us on Telegram and Instagram, and the link for the same is provided in the description of each video. Also students, we have started a new initiative that is of handwritten notes. It is helpful to understand the news daily, time saving and very useful for your revision. We aims to cover 15 questions via handwritten notes in upcoming bank exams. These handwritten notes are available on daily current affairs content PDF at our mobile application and website careerscloud.in. Only our Crack Current Affairs subscribers will be able to access these handwritten notes. A sample PDF of the handwritten notes will be available in the description. Before moving on to the main content students, let's revise some important current affairs. 23rd of September, it is observed as International Day of Sign Language with the theme Sign Up for Sign Language Rights. Then 22nd September as the World Rhino Day with the theme Keep the Five Alive. 25th of September observed as World Pharmacist Day with the theme Pharmacist Meeting Global Health Need. Then 25th of September observed as Antyodaya Divas. Then 26th of September as World Contraception Day with the theme A Choice for All, Freedom to Plan, Power to Choose. 26th is also observed as World Environmental Health Day. You can see the theme here. Next is 26th of September. This day is also observed as World Maritime Day with the theme Navigating the Future, Safety First. And also on 26th we observe International Day for the Total Elimination of Nuclear Weapons. Next is your national news. Zanskar celebrated the 9th Ladakh Zanskar Festival 2024. So the edition can be asked here. So take a note of this. It is the 9th edition of the Zanskar Festival. Then the 4th edition of the Global Bio India was held. Where it concluded? It concluded in New Delhi. Then our country India to host the high-level international meeting on anti-doping in sports. Which is the anti-doping agency for India? It is NADA. And what is for the world? It is WADA, World Anti-Doping Agency, NADA, that is your National Anti-Doping Agency. Then President Draupadi Murmu has inaugurated the 8th India Water Week from 17th of September to 20th of September. PM Modi has launched India's first Namo Bharat Rapid Rail connecting Ahmedabad and Bhuj. Then PM Modi inaugurated and lays the foundation stone for multiple development projects worth more than 8,000 crore rupees in Ahmedabad. PM Modi also launched Subhadra, the largest women-centric scheme in Bhubaneswar. Then Nirmala Sitharaman, our finance minister, has launched NPS Vatsalya for minors. So these are your important revision parts students. Now let's move to the main content. Let's start with national affairs, and here in the national affairs we are talking about the 17th edition of Urban Mobility India Conference and Expo. So this is the 17th edition, right? 17th edition of Urban Mobility India Conference and Expo. As the name suggests, mobility. What is this all about, this mobility? The main aim of this expo, of this conference, is basically to find better transport solutions
better transport optimized solutions, right? So this was the 17th edition of this Urban Mobility India Conference and Expo that was held in Gandhinagar, Gujarat, right? And this was based on a theme. The theme for which this is, let me write the theme also. The theme is important and I want you all to remember, that is standardization and optimization of urban transport solution. I repeat, theme is standardization and optimization for urban transport solutions, right? This is the theme here for this 17th edition of UMI conference and exhibition, that is Urban Mobility India Conference and Exhibition. Now next thing question can be asked is, what is the location where this conference was held? It was held in Gandhinagar, Gujarat, right? Then who inaugurated it? It was inaugurated by the Chief Minister of Gujarat, as it is in Gandhinagar, Gujarat. So Bhupendra Patel, the Chief Minister of Gujarat, inaugurated this conference. Now this is the 17th edition of this conference. If I ask you where it will be the 18th edition of this conference, next the conference will be held, this will be held in 2025 and it is scheduled to be held in Gurugram, Haryana, right? Take a note of this. In Gurugram, Haryana, 18th edition of Urban Mobility India Conference and Exhibition is scheduled to be held. This time, the 17th edition of this saw the participation of around 76 exhibitors from metro rail companies and various public and private sectors. Right here, the companies that are based in Germany, France, Spain, they also took part in this conference. Then here the conference was talking about, as I mentioned, it was talking about making sure the transportation system is more efficient, better planning, eco-bus system will be there. Then here the infrastructure was also talked about, that how can we enhance our ecosystem. This conference, it also focused on about clean air cities, urban freight transportation and so on, right? So if we talk about this UMI, it saw the participation of 76 exhibitors here, and during this only there were some winners that were announced, and these are important winners. If we talk about the city with the most sustainable transport system, it is Kochi, Kerala. Then city with the best public transport system, it is Bhubaneswar, Odisha. City with the best non-motorized transport system, it is Srinagar, Jammu and Kashmir. City with the best safety and security system and record, it is Gandhinagar, Gujarat. Then city with the best intelligent transport system is Surat, Gujarat. Next, if we talk about some other key points, if we talk about the city with the best public transport system, it is Bhubaneswar, Gujarat, that I want you all to remember, right? And this is the 6th time that the Odisha government initiative led by the Capital Region Urban Transport has earned the national recognition as one of the top urban mobility programs. Next is our Minister of Defense Rajnath Singh, as you can see him in the picture here, has launched Aditi 3.0 challenge and DISC 13 during the Swalamban 3.0 initiative. Where was this Swalamban 3.0 initiative held? And I told you this yesterday also. It was held at Bharat Mandapam, that is in New Delhi, and it was organized by which organization? NIIO, that is your Naval Innovation and Indigenization Organization, right? So this is Swalamban 3.0 held at Bharat Mandapam in New Delhi, organized by NIIO. So during this Swalamban 3.0, two things were launched, that is your Aditi 3.0 challenge and DISC 13. What is this Aditi? Aditi is basically the acing development of innovative technologies. I repeat, acing development of innovative technologies. This is Aditi 3.0. This is the 3rd edition of this Aditi 3.0 that was launched. This is the first thing. Second thing that I want you to remember is the 13th edition of DISC, that is Defense India Startup Challenges, right? These two things were recently launched. Now if we talk about Aditi 3.0, this Aditi the main objective is basically to foster innovation in defense technology, right? To make sure that the new technology is incorporated, new use cases are being found with the existing technology in the defense sector, the existing technology that is updated, right? These are the challenges for the or objectives of Aditi 3.0. If we talk about DISC 13, this is the 13th edition that includes 7 challenges aimed at enhancing operational efficiencies within the armed forces. The focus here will be on artificial intelligence, military communication, autonomous system and so on, right? Next is Indian Railways. They have signed an MOU with Switzerland for technical cooperation, right? So direct Indian Railways, that comes under the Ministry of Railways,
they have recently signed a memorandum of understanding, and this MOU was signed between Indian Railways and Switzerland government, right? In Switzerland too, which is the organization there we are talking about, that is DETEC, that is your Department of Environment, Transport and Communication, that is of Switzerland, right? This will enhance the technical cooperation between these two organizations, right? And here we will be seeing under this MOUs technology sharing, track maintenance, construction, and other parts related to the railways has been talked about under this MOU. Here you will be seeing various electric multiple units and train sets will be exchanged. Then passenger and freight cars will be worked upon. Tunneling technology will be worked upon. Railway station modernization process will be done here under this MOU. Next is Australia. They have been selected as the country of focus for IFFI 2024. What is IFFI? That is International Film Festival of India 2024. So the 55th edition of the IFFI is scheduled to take place in Panaji, Goa from 20 to 28th of November 2024, and the country of focus has been declared as Australia for the 55th edition of IFFI. It was declared by MIB, that is Ministry of Information and Broadcasting. Now this country of focus, it is a key feature of FFI that offers a dedicated showcase of the nation's best contemporary films. So the contemporary films of Australia will be showcased here, and the main focus will be on them. Here 7 Australian films, documentaries will be demonstrated. Next is international affairs. Brazil, they became the second country or second BRICS country to not join the China's Border Road Initiative, BRI, right? This Border Road Initiative is of China, and with this BRI they aims to enhance their trade, right? You can understand it in simple terms here, right? That correct. Then recently, earlier it was our India who do not want China to initiate this BRI, and they have not joined this BRI initiative. So India was the first country, and now it is Brazil that became the second country to not join the China's BRI initiative. Correct? Take a note of this. This Border Road Initiative, it is also known as One Belt, One Road Initiative, or this is also known as New Silk Road, right? This was launched by China in 2013, and the aim of this is basically to enhance the connectivity in Asia, Europe, and Africa. Next is ECI, that is your Election Commission of India. They have signed an MOU on electoral cooperation with Uzbekistan's Central Election Commission. So ECI, Election Commission of India, they have signed this electoral cooperation. That means ECI will be helping to manage the elections, right? Or they will be providing with knowledge, their expertise, that how elections are conducted, what are the ways that they should follow, what are the framework they should follow, what are the things that they should keep in mind while organizing an elections, right? So this expertise will be shared here by ECI with the Electoral Corporation of Uzbekistan for central election, right? Or for the elections that were scheduled to be held in Uzbekistan on 27th of October in 2024, right? Take a note of this. Here you can see ECI, they signed this electoral cooperation agreement with Uzbekistan's central poll body, that is Central Election Commission, during the visit of CEC Rajiv Kumar to Tashkent as international observer for the upcoming election, and the polls in Uzbekistan were scheduled on 27th of October 2024. Next is banking and finance. RBI has made 6 amendment KYC directions, right? 6 amendments has been made by RBI here, right? These reason behind these amendments is, right, to align with the recent amendments to the prevention of money laundering, to incorporate the corrigendum regarding the implementation of section 51A of the unlawful activities, that is UAPA of 1967, to revise certain existing instruction. Now if we talk about these 6 amendments, they are basically customer acceptance policy. Next is your high risk account monitoring, KYC updation, KYC records, and CKYCR, that is your Central KYC Records Registry management, that will be done within the 7 days. Then challenges in the UAPA procedures,
terminologies update. You can go through the PDF and do remember all these amendments. Next is SBI. They have raised 5,000 crore rupees via 81 bonds at 7.98%. See, bonds are raised by SBI. The bonds are worth 5,000 crore rupees. These are your AT1 bonds. That is your additional tier 1 bonds, and it has been launched for the issued for the current FY25, and the coupon rate here is provided at 7.98%. Right, the tenure of these SBI's 81 bonds is perpetual with call option after 10 years and each anniversary date thereafter. The issue here attracted a bid over 3.5 times against the base issue size of 2,000 crore rupees. The total bids, because the total bids or the total number here that were received was 108. Right, these bonds, they are AA plus rated. Right, that means they are stable, they are secure. Right, more secure than is AAA plus rated. Right, this is the most secure bonds that are considered. Hence, if they are more secure, the amount of interest they will be paying will be less, and that is the reason, as they are AA plus rated, they are giving an interest rate of 7.98%. Next is SEBI bars OCAL and its promoters from securities market over fund diversion allegation. What is fund diversion allegation? Basically, they were misrepresentation the financial records of the company. They were diverting their funds to some other firm or some other company which is not legal. Here it is SEBI. They have barred OCAL, that is One Life Capital Advisors Limited, and their promoters Pando Nag and Prabhakar Nag from participating in securities market until further notice. Right, and here the OCAL's method, they involve various regulatory violations, hidden transactions were there, diversion of funds were there as loans to the related parties. Right, due to which a bar means a ban has been imposed on them. Next is awards and recognition. AFC Awards 2023, Son Heung-min and Ellie Carpenter honored as the Asia's best international player. So if we are talking about men, Son Heung-min, and for women, as you can see her in the picture, she is Ellie Carpenter, and they have been honored as the Asia's best international player. They were honored by AFC, that is your Asian Football Confederation, and this was during a award ceremony that was held in Seoul, South Korea. Right, Ellie Carpenter, she's an Australian player. Right, and if we are talking about the male player, that is Son Heung-min. Right, if we talk about him, okay, you tell me, Son Heung-min, he is from which country? Right, you tell me. Moving on, if we talk about further, if we talk about here, Ellie Carpenter, as I mentioned, Australian player, and she won the inaugural Asian International Women's Player of the Year award. Apart from this, let me give you a list of this only, that will give you a better idea. International Player of the Year, Son Heung-min. As I mentioned, I gave you the homework, but you can see here, South Korea. Women's International Player of the Year, Ellie Carpenter from Australia. Then if we talk about the Player of the Year, Akram Afif of Qatar. Women's Player of the Year, Kiko Saiki of Japan. Coach of the Year for women, Park Hyung-jeon of South Korea. And Coach of the Year in men's is Go Oiwa of Japan. Right, so go through them, take a note of this. This is related to which sport? We are talking about football. Next is appointments and resignation. An interesting victory here. Donald Trump has been elected as the 47th president of United States of America. He defeated whom in the elections? He defeated Kamala Harris. Right, he previously he served as the 45th president of USA. Now he will be the 47th. Who was the 46th? Joe Biden was the 46th president of USA. Right, and Donald Trump is the first former president to return to the power since Grover Cleveland. Right, take a note of this important and interesting victory, and the future can be different ahead. Let's see how the people of USA are now taking this, how the world economy is taking this. Because of the elections, there can be a turmoil in the markets also. The wars can increase, wars can go down. There are so many factors to look into the economy when such elections, such victories take place. Next
Next is government has appointed S. Gopal Krishnan as the chairman of SSC. What is SSC? SSC is your staff selection commission, right? Many of our students are working towards SSC preparation, right? They are waiting for multiple exams that will be conducted by SSC and so on, right? So government of India has appointed 1991 batch IAS officer S. Gopal Krishnan as the chairman of SSC with immediate effect. Take a note of this. Here, S. Gopal Krishnan, he will be succeeding whom? He will be succeeding Rakesh Ranjan. Rakesh Ranjan is a 1992 batch IAS officer. Right, apart from this, do remember one more two appointments, such as your V. Uma Shankar has been appointed as the secretary of the Ministry of Road Transport and Highways. Vikram Devdutt has been appointed as the Director General of DGCA. Tanmay Kumar appointed as the Special Secretary of the Ministry of Environment and Forest, Ministry of Environment, Forest and Climate Change. And Subrata Gupta appointed as the Secretary of the Ministry of Food Processing Industries. Moving on, next is acquisitions and mergers. CCI has approved the acquisition of the additional 31.52% stake of Agilius Diagnostics Limited by Fortis Healthcare Limited. Right, following the transaction, the shareholding of FHL, that is Fortis Healthcare Limited, in Agilus will increase to 89.2%. Earlier they were having 57.68%. With the increase now of 31.52%, it will be 89.2%. Next is science and technology. China, they have launched Shenzhou 19 with 3 new crew to its Tiangong space station. So this question can be also asked, what is the name of the space station of China that they are making? It is Tiangong space station. And recently China, they have launched Shenzhou 19 with 3 new crew to its Tiangong space station. Right, these 3 astronauts, that are 2 men and 1 woman, right, they will be on a 6-month mission to the low Earth orbit space station, that is your Tiangong space station. This spacecraft Shenzhou 19 was launched using the Long March 2F carrier rocket, right? And China has launched their first crew mission in 2003, and this is their 4th crewed mission during the application and development of this Tiangong space station. Who are these crew members? The new crew members are Kai Shuhi, then Song Lengdong, and Air Force pilot Wong Haozi. Right, these are the 3 new crew members. Next is important days. National Cancer Awareness Day. It is observed on 7th of November. This day is observed basically to create awareness about the prevention, detection and the treatment of various types of cancer. Here, this National Cancer Awareness Day aims to educate the public about the early detection and access to quality care of cancer, as well as healthy lifestyle choices. For the first time, this day was observed in 2017. Right, take a note of 2014 it was observed for the first time. Next is state news. Meluri officially declared as the 17th district of Nagaland. So direct question, students, that which is the 17th district of Nagaland? It is Meluri. Who is the governor of Nagaland? L.R. Ganeshan. Right, and Meluri, this includes 31 villages that covers an area of almost 1011 square kilometers. Then Meluri primarily inhabited by which tribe? The name of the tribe here is Pochuri Naga tribe. This is the tribe that primarily resides in the Meluri, and this is now the 17th district of Nagaland. Who is the Chief Minister of Nagaland? Nephew Rio. Right, and there is also a national park in Nagaland by the name Intanki National Park. Right, students, that's all for the day. Now let's move to quick one-liner revision. 17th edition of Urban Mobility India Conference and Expo was held in Gandhinagar, Gujarat. Then Defence Minister Rajnath Singh has launched Aditi 3.0 challenge and DISC 13 during Swalamban 3.0 that was held at Bharat Mandapam in New Delhi. Then Indian Railways signed an MOU with Switzerland for technical cooperation. Australia selected as the country of focus for the IFFI 2024. Then Brazil became the second BRICS country to
not join the China's border road initiative. Then ECI, they have signed an MOU on electoral cooperation with Uzbekistan's Central Election Commission. Next, ECI has signed an MOU. We have seen this. RBI makes 6 amendment KYC directions. Then SBI has raised 5,000 crore rupee via 81 bonds at 7.8 coupon rate. Then SEBI has barred OCAL and their promoters from securities market over the fund diversion allegation. AFC has awarded 2023 Son Heung-min and Ellie Carpenter as the Asia's best international player. Then Donald Trump elected as the 47th president of USA. He was also the 45th president of USA. Who was the 46th president? Joe Biden. Then government has appointed S. Gopal Krishnan as the chairman of SSC. CCI has approved the acquisition of additional 31.52% stake of Agilus Diagnostics Limited by Fortis Healthcare Limited. China, they have launched Shenzhou 19 with 3 new crew to their Tiangong space station. National Cancer Awareness Day observed on 7th of October. Meluri officially declared as the 17th district of Nagaland. That's all for the day, students. Now let's move to the quick one-liner or to some important MCQ. Which of the following has recently launched a 3-month campaign जिसका नाम रहेगा संपूर्णता अभियान, जिसका एम है 100% सैचुरेशन करना ऑफ 12 की सोशल सेक्टर्स इंडिकेटर्स अक्रॉस 500 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स एंड 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, राइट। तो 500 ब्लॉक्स में एंड 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में वहाँ पे 12 सेक्टर्स के ऊपर डेवलपमेंट का काम करने के लिए ये एक 3 महीने का कैंपेन लॉन्च किया गया जिसका नाम है संपूर्णता अभियान। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, किस स्टेट गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली बजट प्रेजेंट किया? 3.65 लाख करोड़ रुपए का बजट रहेगा फॉर FY25। तो मध्य प्रदेश के द्वारा ये बजट प्रेजेंट किया गया फॉर FY25। इस थीम बजट की थीम रहेगी विकसित मध्य प्रदेश विकसित भारत एंड ये 16% हायर रहेगा बजट एज कम्पेयर टू FY24 लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। नेक्स्ट, उस क्रेडिट एजुकेशन प्रोग्राम का नाम बताओ जो लॉन्च किया गया था वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म के द्वारा इन पार्टनरशिप विद ट्रांस यूनियन सिविल, जिसका एम है कि वीमेन एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा देना एंड इंडिया का जो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी पहुंचने का जो टारगेट है उसमें इसका बहुत सपोर्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप को अगर हम बढ़ावा देंगे, वीमेन अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगी तो यहाँ पे हमें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा, राइट। तो क्रेडिट एजुकेशन प्रोग्राम का नाम क्या है? वो है शहर। नेक्स्ट आ जाते हैं। इन जुलाई यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के यूनियन मिनिस्टर हैं, इनके द्वारा लॉन्च किया गया इंडो फ्रेंच लीवर एंड मेटाबॉलिक डिजीज नेटवर्क एट कहाँ पर? तो ये लॉन्च किया गया इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर एंड बाइलरी साइंसेज की जगह पर इन न्यू दिल्ली। एंड इसका एम क्या था कि जो फैटी लीवर्स डिजीज़ आजकल हमें देख रहे हैं बहुत ज़्यादा उनमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है एंड उसको टैकल करने के लिए एंड इन डिजीज से फाइट करने के लिए यहाँ पे इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मैंडेट किया है इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन ISI मार्क। ESI मार्क आपके स्टेनलेस स्टील एंड एल्यूमिनियम किचन यूटेंसिल्स पे लगेगा एंड अगर जिस भी यूटेंसिल पर और जिस भी स्टेनलेस स्टील एंड एल्यूमिनियम किचन यूटेंसिल पे ये ISI मार्क नहीं होगा वो मार्केट में सेल नहीं हो सकेगी। एंड ये क्वालिटी के बारे में दर्शाता है कि ये जो आप जिस प्रोडक्ट पर जिस यूटेंसिल पे ये ISI मार्क होगा ये उसकी क्वालिटी के बारे में बताता है। ये स्टैंडर्ड ये क्वालिटी मार्क किसके द्वारा सेटअप किया गया है? BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के द्वारा। नेक्स्ट आ जाते हैं। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे ने रिलीज किया कितने रुपए का कमेमोरेटिव कॉइन इन द मेमोरी ऑफ फ्रीडम फाइटर जवाहरलाल दारदा जी ऑन हिज 101st बर्थ एनिवर्सरी। तो 101वीं बर्थ एनिवर्सरी पे ये 100 रुपीज़ का कमेमोरेटिव कॉइन लॉन्च किया गया है एकनाथ शिंदे जी के द्वारा जवाहरलाल दारदा जी की बर्थ एनिवर्सरी पर। ये जो कॉइन रहेगा 35 ग्राम का ये कॉइन रहेगा, 4 एलॉय से बना है ये एलॉय कॉइन एंड ये 44 मिलीमीटर डायमीटर में रहेगा। नेक्स्ट, इन जुलाई डैश एंड द साइबर पीस फाउंडेशन इनके द्वारा डिजिटल शक्ति 5.0 कैंपेन को लॉन्च किया गया ताकि वीमेंस को अपस्किल किया जा सके इन साइबर स्पेस एंड ये 5th एडिशन है, 5th फेज रहेगा इस कैंपेन का। तो किसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है? नेशनल कमीशन फॉर वीमेन के द्वारा एंड इसमें वीमेंस को साइबर सिक्योरिटी में बढ़ावा देने के लिए स्किल्स प्रोवाइड कराने के लिए लॉन्च किया गया। इसका 5th फेज है। जो फर्स्ट फेज था डिजिटल शक्ति का वो पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में लॉन्च किया गया था 2018 में। नेक्स्ट, किस मिनिस्ट्री ने रिसेंटली डेजिग्नेट किया एज द नोडल मिनिस्ट्री फॉर द हज कमेटी ऑफ इंडिया, अ स्टैट्यूटरी बॉडी दैट ऑर्गेनाइजेस हज पिलग्रिमेज फॉर इंडियन पिलग्रिम्स। तो किस मिनिस्ट्री ने डेजिग्नेट किया नोडल मिनिस्ट्री को फॉर द हज कमेटी? तो वो है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स।
राइट। एंड इससे पहले मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इसका ध्यान रखती थी हज पिलग्रिमेज का, अब मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स रखेगी। नेक्स्ट, किस मिनिस्ट्री ने रिसेंटली लॉन्च किया प्रोजेक्ट परी? परी क्या है? पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया। इसके अंदर बेसिकली क्या है कि अभी इंडिया में हमें यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी देखने को मिली थी, कब? 21 जुलाई से लेके 31 जुलाई तक। और इसके दौरान यहाँ पे रोड्स पर, आपकी पब्लिक प्लेसेस पर म्यूरल्स, पेंटिंग्स, कल्चर सेटअप करने की बात की गई, जो कि हमारे कल्चर को दर्शाता है। तो ये प्रोजेक्ट परी किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा। ये जो वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी हुई थी यूनेस्को की, ये हुई कहाँ पर थी? भारत मंडपम, न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट, द यूनियन कैबिनेट ऑफ इंडिया ने इन्होंने अप्रूव किया साइनिंग ऑफ बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिडिक्शन एग्रीमेंट, जो कि है हाई सीज ट्रीटी। ये लॉन्च की इन्होंने साइन किया अंडर व्हाट? अंडर द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉज ऑफ सी। यहाँ पे मेन एम है जो मरीन बायोडाइवर्सिटी है उसको प्रिजर्व करने की यहाँ पे बात की जाती है। नेक्स्ट है, किस मिनिस्ट्री या ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली अप्रूव किया द प्रपोजल टू डिस्प्ले न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन, जैसे आपकी शुगर, सॉल्ट या फिर सैचुरेटेड फैट, या आपके बोल्ड एंड लार्ज फॉन्ट्स में डिस्प्ले किया जाएगा पैकेज फूड के लेबल्स पर। तो किस मिनिस्ट्री के द्वारा ये नोटिफाई किया गया है या ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा? फसाई के द्वारा इसको नोटिफाई किया गया, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट, which state is set to become the first in India to adopt an action plan for road safety for the next 10 years? तो किस स्टेट ने, अभी वो पहली स्टेट बनी इंडिया जिन्होंने अडॉप्ट किया नेशनल एक्शन प्लान फॉर रोड सेफ्टी फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स? वो है राजस्थान। एंड यहाँ पर इनका हेल्प करेगा वर्ल्ड बैंक, ताकि एक प्रॉपर फ्रेमवर्क बनाया जा सके। 3 फेज में ये आपका इंप्लीमेंट किया जाएगा एंड रोड सेफ्टी के ऊपर बहुत ध्यान दिया जाएगा राजस्थान में। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस कंपनी ने भी कर्नाटका गवर्नमेंट के साथ टाइप किया ताकि AR/VR स्किल्स में यहाँ पे लोगों को स्किल्स प्रोवाइड की जा सके, टीचर्स अपॉइंट किए जा सके, उनको ट्रेनिंग दी जा सके ताकि वो फर्दर बच्चों को सिखा सके अबाउट साइबर सिक्योरिटी एंड AR/VR स्किल्स से रिलेटेड जो भी साइबर सिक्योरिटी की ज़रूरत है। तो वो है मेटा, जिसको पहले फेसबुक के नाम से जानते थे। यहाँ पे एम रहेगा कि 1 लाख टीचर्स एंड 10 लाख स्टूडेंट्स को हम डिजिटली ट्रेन कर सकें इन AR/VR बाय 2025। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द डाटा रिलीज बाय SBI की, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ERD इकोनॉमिक रिसर्च डिपार्टमेंट की रिपोर्ट रिलीज की गई, जिसमें बताया कि FY14 से लेके FY23 के बीच में इंडिया ने 125 मिलियन जॉब्स की जनरेशन करी है इन वेरियस सेक्टर। नेक्स्ट, किस स्टेट ने रिसेंटली, या विच स्टेट बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया जिन्होंने पब्लिश की फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ द पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर अक्रॉस ऑल द लोकल बॉडीज? तो कौन सी स्टेट वो पहली स्टेट बनी इन इंडिया जिन्होंने पब्लिश की है फर्स्ट वॉल्यूम? वो है केरला। नेक्स्ट, डैश द फाइनेंस मिनिस्टर एंड डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान प्रेजेंटेड द बजट फॉर FY25। तो दिव्या कुमारी जो कि फाइनेंस मिनिस्टर है एंड डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है राजस्थान, इनके द्वारा ये बजट प्रेजेंट किया गया। इनका एम है राजस्थान को $350 बिलियन की इकोनॉमी बनाने का। नेक्स्ट, किस मिनिस्टर ने रिसेंटली कोलैबोरेट किया इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के साथ, ICAI के साथ, ताकि एक AI ऑडिट टूल को सेटअप किया जा सके जो कि आपके कॉर्पोरेट इंडिया एंड फ्रॉड्स जो होंगे उनको डिटेक्ट करने का काम करेगा। तो वो है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। इनके द्वारा ये सेटअप किया गया है। एंड यहाँ पे इनिशियली अगर हम बात करें तो 25 करोड़ रुपए अलोकेट किए गए हैं इस AI टूल को बनाने के लिए एंड फर्दर एक्सपेक्टेड है ये 25 से 100 करोड़ रुपए हो जाए। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने डिक्लेयर किया डैश एस संविधान हत्या दिवस, जो कि है कॉन्स्टिट्यूशन मर्डर डे, टू कमेमोरेट 1975 इमरजेंसी ऑफ इंडिया। तो 25 जून को डिक्लेयर किया गया कि हर साल 25 जून को हम ऑब्जर्व करेंगे संविधान हत्या दिवस, क्योंकि 1975 में हमने इमरजेंसी ऑब्जर्व करी थी, जो कि इंदिरा गांधी जो कि जबकि प्राइम मिनिस्टर थी उनके द्वारा इम्पोज की गई थी। एंड 2025 में इसके पूरे 50 साल हो जाएंगे, तो इसको कमेमोरेट करने के लिए बोला गया हर साल अब 2025 से हम 25 जून को संविधान हत्या दिवस ऑब्जर्व करेंगे। नेक्स्ट, नितिन गडकरी जी के द्वारा अभी एक 6 लेन का हाईवे एंड जो कि 7 किलोमीटर लंबा रहेगा, कहाँ से कहाँ तक इनॉग्रेट किया? तो ये धरगल तक है। कहाँ से? मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, जिसको हम मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहते हैं, वहाँ से लेके धरगल तक इन गोवा ये लॉन्च किया गया है। 7 किलोमीटर का ये रोड रहेगा। नेक्स्ट, किस मिनिस्टर ने रिसेंटली कैप किया इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन को एट 1.66 करोड़ रुपीस पर IEC इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड फॉर द पीरियड 1 जुलाई से 31 अगस्त तक? तो ये रहेगी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा कैपिंग की गई है।
नेक्स्ट आ जाते हैं, किस मिनिस्ट्री या ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली लॉन्च किया गियर शिफ्ट चैलेंज, जो कि जीरो एमिशन ट्रक अडॉप्शन को बढ़ावा देगा। देखो अभी लॉजिस्टिक सेक्टर में क्या होता है, ट्रक से ट्रांसपोर्ट होता है एंड ट्रक्स हमारे फॉसिल फ्यूल्स को यूज़ करते हैं, जैसे डीजल पेट्रोल हो गया, और ये पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। तो इनकी जगह पे हम इलेक्ट्रिक ट्रक्स ला सकें, हम ग्रीन ट्रक्स ला सकें जिसमें ग्रीन हाइड्रोजन एंड ग्रीन मेथनॉल हम यूज़ कर सकते हैं, ताकि जो एमिशन है वो लॉजिस्टिक सेक्टर में कम हो सके एंड जीरो एमिशन ट्रक अडॉप्शन को बढ़ावा मिल सके। तो किस मिनिस्ट्री या ऑर्गेनाइजेशन ने गियर शिफ्ट चैलेंज लॉन्च किया है, तो नीति आयोग के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नोटिफाइड गुड्स एंड सर्विस टैक्स रिटर्न 1A फॉरम, जो अलाउ करेगा टैक्स पेयर्स को टू अमेंड देयर आउटवर्ड सप्लाई और सेल्स रिटर्न फॉरम। तो CBDT के द्वारा लॉन्च किया गया है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली लॉन्च किया वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट इनिशिएटिव, ताकि एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर में रिसर्च को बढ़ावा दे सके। देखो जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है, वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट, मतलब हर एक साइंटिस्ट को एक प्रोडक्ट मिलेगा जिसके ऊपर वो रिसर्च करेंगे एंड उस रिसर्च से वो फर्दर आउटकम निकालेंगे उस सिंगल प्रोडक्ट पर। 5 साल तक ये आपका प्रोग्राम चलेगा, वन साइंटिस्ट वन रिसर्च। तो किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, ये लॉन्च किया गया है आपका ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स इज आवर होमवर्क सेक्शन। फर्स्ट होमवर्क इज यू हैव टू गिव मी द नेम ऑफ द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा। हु इज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा? सेकेंड, who has been recently appointed as the new chairperson of National Commission for Women? Third question, tell me who has been recently honored with the humanitarian award? With the humanitarian award at 2024 Conscious Companies Award. Tell me who has been honored with the humanitarian award at the Conscious Companies Award. So these are your 3 homework questions. If you find the session interesting, students, do hit the like button. And if you are new to our channel and haven't subscribed to us, do subscribe, as we are one stop solution for current affairs. Now students, let's move to the Hindi segment of this video. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम 9 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। ये सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। आज की वीडियो में 17 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रहेंगे ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस। आज की वीडियो में हम बात करेंगे 17th एडिशन ऑफ अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो की, जो कि गांधीनगर गुजरात में हुआ। हम बात करेंगे आदिति 3.0 चैलेंज की एंड DISC 13 की, जो कि अभी लॉन्च किया गया डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा। देन हम बात करेंगे एक MOU की, जो कि इंडियन रेलवेज एंड स्विट्जरलैंड गवर्नमेंट के बीच में साइन हुआ फॉर टेक्निकल कॉपरेशन। कंट्री ऑफ फोकस ऑस्ट्रेलिया को डिक्लेयर किया गया है। किस चीज़ के लिए, क्यों डिक्लेयर किया गया, क्या इसका बेनिफिट रहेगा, इन चीज़ों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। एंड तक बने रहिएगा। एंड स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। वी आर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर करंट अफेयर्स। Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find our Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will be getting daily, weekly and monthly current affairs on regular basis. You can use code VIKAS10 to get additional 10% discount while purchasing the course. This video is available both in English and Hindi. The timestamp for both English and Hindi are mentioned in the description of each video. You can contact us on the number provided or mail provided. Also follow us on Telegram and Instagram, and the link for the same is provided in the description of each video. Also students, we have started a new initiative that is of handwritten notes. It is helpful to understand the news daily, time saving and very useful for your revision. We aims to cover 15 questions via handwritten notes in upcoming bank exams. These handwritten notes are available on daily current affairs content PDF at our mobile application and website careerscloud.in. Only our Crack Current Affairs subscribers will be able to access these handwritten notes. A sample PDF of the handwritten notes will be available in the description. आगे बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स, हम कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रिवाइज करेंगे। जैसे हम बात कर रहे हैं 23 सितंबर की, इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज जिस दिन ऑब्जर्व किया जाता है, जिसकी थीम है साइन अप फॉर साइन लैंग्वेज राइट्स। 22 सितंबर को वर्ल्ड राइनो डे, 25 सितंबर को वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे, 25 को ही अंत्योदय दिवस ऑब्जर्व किया जाता है। 26 सितंबर को हम कुछ इंपॉर्टेंट डेज ऑब्जर्व करते हैं, जैसे वर्ल्ड कॉन्ट्रासेप्शन डे, वर्ल्ड इन्वायरमेंटल हेल्थ डे,
वर्ल्ड मैरीटाइम डे, इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन। तो ये सब डे यहाँ पे ऑब्जर्व किए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कुछ नेशनल न्यूज़ की, इंपॉर्टेंट है ये, काफ़ी मार्क करके चलेंगे। जैसे जास्कर फेस्टिवल की बात करें तो 9th एडिशन का जास्कर फेस्टिवल ऑब्जर्व किया गया कहाँ पर, लद्दाख में। देन चौथा एडिशन ऑफ ग्लोबल बायो इंडिया 2024 को कंक्लूड किया गया न्यू दिल्ली में। इंडिया ने होस्ट किया हाई लेवल इंटरनेशनल मीटिंग्स को ऑन एंटी डोपिंग इन स्पोर्ट्स। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो नाडा, वर्ल्ड में एंटी डोपिंग एजेंसी कौन सी है, वाडा, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। इंडिया की नाडा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। देन बात करें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू मैम, इन्होंने इनॉग्रेट किया 8th एडिशन ऑफ इंडिया वाटर वीक 17 सितंबर से 20 सितंबर तक। देन बात करें पीएम मोदी, इन्होंने लॉन्च किया इंडिया का पहला नमो भारत रैपिड रेल कनेक्टिंग अहमदाबाद एंड भुज। देन पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किया एंड ले किया फाउंडेशन स्टोन फॉर मल्टीपल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वर्थ मोर देन 8,000 करोड़ रुपीज इन अहमदाबाद, गुजरात। देन पीएम मोदी ने लॉन्च किया सुभद्रा, जो कि लार्जेस्ट वीमेन सेंट्रिक स्कीम है भुवनेश्वर, ओडिशा में। देन निर्मला सीतारमन, जो कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, इन्होंने एनपीएस वत्सल्य को लॉन्च किया फॉर माइनर्स। तो ये थे स्टूडेंट्स आज के रिवीजन पार्ट, राइट। इंटरेस्टिंग वन लाइनर्स हम डेली बेसिस पे ही लाते हैं ताकि आपके रिवीजन हो सके, आपको एक रिवाइज करने का मौका मिल सके कि पिछले कुछ महीनों में, पिछले कुछ वीक्स में क्या क्या करंट अफेयर्स आ रहे हैं, एक क्विक रिवीजन हो जाती है इससे। फिर आ जाते हैं आज के मेन कंटेंट पर। हम स्टार्ट करेंगे नेशनल अफेयर से। अभी हम बात कर रहे हैं 17वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया की, राइट। इसकी एक कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो हमें देखने को मिला। लोकेशन इंपॉर्टेंट रहेगी, कहाँ पर देखने को मिला, गांधीनगर, गुजरात में। गुजरात के चीफ मिनिस्टर कौन है, भूपेंद्र पटेल, उनके द्वारा इस कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो को इनॉग्रेट किया गया। इस कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो की एक थीम है, जरूर याद रखेंगे, स्टैंडर्डाइजेशन एंड ऑप्टिमाइजेशन फॉर ट्रांसपोर्ट सॉल्यूशंस, ये थीम रहेगी। और जैसा थीम सजेस्ट कर रही है यहाँ पे, जो मेन एम है कि वो क्या है कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर को हम कैसे और बेटर कर सकते हैं, कैसे ट्रांसपोर्टेशन को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, कैसे लॉजिस्टिक को और बेटर किया जा सकता है, कैसे ट्रांसपोर्ट्स में जैसे नई टेक्नोलॉजीज लाई जा सकें, कैसे हम मेट्रो सिस्टम्स को बेटर कर सकते हैं, कैसे पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट रिड्यूस कर सकते हैं, कैसे हम अर्बन एरियाज में, रूरल एरियाज में और बेटर ट्रांसपोर्ट ला सकते हैं, एंड जो मिडिल इनकम एंड स्मॉल इनकम टाउन्स हैं उन पे भी हम कैसे ट्रांसपोर्ट सेक्टर में, जैसे हम आपके पब्लिक ट्रांसपोर्ट में रेवोल्यूशन ला सकते हैं। तो इसके ऊपर यहाँ पे बात की गई, ये इसकी थीम रहेगी, ठीक है, मार्क करके चलेंगे। नेक्स्ट जैसे आप देख सकते हैं इस अर्बन मोबिलिटी इंडिया में 76 एग्जीबिटर्स का पार्टिसिपेशन देखने को मिला फ्रॉम मेट्रो रेल कंपनीज। 67 इंडियन एग्जीबिटर्स एंड 7 फॉरेन एग्जीबिटर्स ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया, जैसे जर्मनी, फ्रांस, सब स्पेन, इन कंट्रीज से भी यहाँ पे लोगों का, कंपनीज का पार्टिसिपेशन देखने को मिला। इसी के अलावा कुछ याद रखेंगे, अवार्ड्स दिए गए, जैसे सिटी विद द मोस्ट सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट कौन सी है, कोची, केरला। सिटी विद द बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, भुवनेश्वर, उड़ीसा, ये इंपॉर्टेंट है। Then city with the best non-motorized transport system, Srinagar, Jammu and Kashmir. City with the best safety and security systems and record, Gandhinagar, Gujarat. City with the best intelligent transport system, सूरत, गुजरात की रहेगी, ठीक, इसको मार्क करेंगे। एंड जैसे मैंने बताया, इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है, सिटी विद द बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम कौन सी है, भुवनेश्वर, ओडिशा की। नेक्स्ट आ जाते हैं, हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने लॉन्च किया आदिति 3.0 चैलेंज को एंड DISC 13 को ड्यूरिंग स्वावलंबन 3.0। देखो ये स्वावलंबन हुआ कहाँ पर था, भारत मंडपम में, जो कि न्यू दिल्ली में है। इसको ऑर्गेनाइज कराया गया था NIIO के द्वारा। NIIO क्या है आपका, नेवल इनोवेशन एंड इंडिजनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इनके द्वारा इसको ऑर्गेनाइज कराया गया था, कहाँ पर, भारत मंडपम में। एंड इसी के दौरान यहाँ पर राजनाथ सिंह के द्वारा दो चीज़ें लॉन्च की गई हैं, आदिति 3.0 चैलेंज एंड DISC 13। अब ये आदिति क्या है, आदिति है आपका एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज विद IDEX 3.0। इसमें बेसिकली डिफेंस टेक्नोलॉजीज को बेटर करने के लिए, इसमें इनोवेशन लाने के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के लिए, नए यूज केसेस को फाइंड आउट करने के लिए ऑफ एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी इन द डिफेंस सॉल्यूशन, इसका एम रहेगा। देन दूसरी चीज क्या है, DISC 13। ये 13th एडिशन रहेगा इस DISC का। DISC है क्या आपका, डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज, राइट। तो डिफेंस में, इंडिया में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए जो चैलेंजेस हैं उनको फेस करना, जो ऑपरेशनल एफिशिएंसीज हैं उनको टैकल करना, एंड डोमेन्स जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मिलिट्री कम्युनिकेशन, ऑटोनोमस सिस्टम्स, इनके ऊपर यहाँ पे काम करने की बात की गई।
नेक्स्ट आ जाते हैं इंडियन रेलवेज, इन्होंने साइन किया MOU विद स्विट्जरलैंड फॉर टेक्निकल कॉपरेशन। देखो, नॉलेज शेयर करने के लिए कैसे हम रेलवे सेक्टर को और बेटर कर सकते हैं, कैसे वहाँ पर हम इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं बोथ रेलवेज़ में, प्लेटफॉर्म्स पर क्या नई टेक्नोलॉजीज वहाँ पे ला सकते हैं, कैसे हम उनको मॉडर्नाइज कर सकते हैं रेलवे सिस्टम को, क्या नई मशीन्स यूज़ की जा सकती हैं, क्या क्या कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड की जा सकती है अगर मान लो हमें कोई टनल बनानी है रेलवे के लिए, राइट, तो उन टनल बनाने के लिए, करेक्ट, तो इन सब चीज़ों के ऊपर यहाँ पे कॉपरेशन होगा, यहाँ पे नॉलेज शेयर होगी, एक्सपर्टीज शेयर की जाएगी, और इसी के लिए यहाँ पे MOU साइन किया गया इंडियन रेलवेज एंड स्विट्जरलैंड के द्वारा फॉर टेक्निकल कॉपरेशन। एंड यहाँ पे ये पिक्चर में कौन है, ये है अश्विनी वैष्णव, ये हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ रेलवेज है। नेक्स्ट आ जाते हैं ऑस्ट्रेलिया, इनको सेलेक्ट किया गया एज द कंट्री ऑफ फोकस फॉर IFFI 2024। IFFI क्या है, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, ये 55वां एडिशन है जो कि अभी हमें पणजी गोवा में देखने को मिलेगा 20 से 28 नवंबर तक। एंड मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा इसको होस्ट किया जाता है। एंड यहीं पे याद रखेंगे, कंट्री ऑफ फोकस का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो इनकी फिल्म्स हैं, डॉक्यूमेंट्रीज हैं, उनके ऊपर फोकस रहेगा। ऑस्ट्रेलिया की जो रिच स्टोरी टेलिंग ट्रेडिशंस हैं, वाइब्रेंट फिल्म कल्चर है, इनोवेटिव सिनेमैटिक टेक्निक्स हैं, उनको यहाँ पे प्रमोट किया जाएगा, उनके ऊपर बात की जाएगी। एंड 7 ऑस्ट्रेलियन फिल्म्स को, राइट, डॉक्यूमेंट्रीज को यहाँ पे दर्शाया जाएगा। नेक्स्ट इंटरनेशनल अफेयर्स की बात करते हैं तो ब्राजील अभी दूसरी कंट्री बन गई है, या दूसरी ब्रिक्स कंट्री बन गई है, जिन्होंने चाइना का जो बॉर्डर रोड इनिशिएटिव है, जिसको आप एक और नाम से जानते हैं, जो कि है वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, इसी को आप एक और नाम से जानते होंगे जो है न्यू सिल्क रोड, राइट। इस इनिशिएटिव को ज्वाइन करने से मना कर दिया है। पहली कंट्री कौन सी थी, पहली ब्रिक्स कंट्री जिन्होंने इसको ज्वाइन करने से मना किया था वो थी हमारी इंडिया, और अब दूसरी कंट्री कौन सी बन गई है, ब्राजील, राइट। ये जो नया सिल्क रोड है या फिर वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है, या जो बॉर्डर रोड इनिशिएटिव है, ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, ये चाइना का है। एंड इनका एम क्या है कि एशिया, यूरोप एंड अफ्रीका को इसके थ्रू हम जोड़ सके, एंड इस पर चाइना की बहुत बड़ी कमांड रह सके, राइट। तो इसी को टैकल करने के लिए, एंड इसमें बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में, इससे इंडिया को काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने को मिल सकता है ट्रेड के हिसाब से, क्योंकि चाइना को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा इससे, चाइना और स्ट्रेंथन होता दिखेगा हमारे रीजन में, राइट। पाकिस्तान के थ्रू भी इसका एक रोड जाने की बात की गई है, इसलिए आप देखेंगे चाइना पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स प्रोवाइड कराता है, मॉनेटरी वाइज भी एंड सर्विसेज वाइज भी, एज वेल एज प्रोडक्ट वाइज भी, करेक्ट। तो ये जो प्रोजेक्ट है, इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इन द हिस्ट्री, एंड इसकी टोटल कॉस्ट एस्टिमेटेड है कि ये $4 ट्रिलियन से लेके $8 ट्रिलियन के बीच में ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कॉस्ट करेगा चाइना को, राइट। तो पहले इंडिया ने मना कर दिया ब्रिक्स कंट्रीज में से, और अब ब्राजील ने ब्रिक्स कंट्रीज में से इसको मना कर दिया है। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इन्होंने MOU साइन किया इलेक्टोरल कॉर्पोरेशन के लिए उज्बेकिस्तान की सेंट्रल इलेक्शन कमीशन से। अभी हम देख रहे हैं कि 27 अक्टूबर को उज्बेकिस्तान में 2024 में पोल्स होंगे, इलेक्शंस होंगे, तो उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपनी एक्सपर्टीज शेयर करेगी कि कैसे इलेक्शंस होते हैं, क्या क्या प्रोसीजर्स फॉलो करने चाहिए, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या गाइडलाइंस फॉलो करनी चाहिए, राइट, क्या क्या टेक अवेज होते हैं उससे, क्या क्या चीज़ों का वहाँ पे इलेक्शन से पहले एंड इलेक्शंस के बाद ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या रूल्स इंप्लीमेंट कराने चाहिए, राइट। एंड इस म्यूचुअल कॉपरेशन को बढ़ावा देने के लिए ही ये ECI ने यहाँ पे MOU साइन किया है सेंट्रल इलेक्शन कमीशन ऑफ उज्बेकिस्तान के साथ। नेक्स्ट आ जाते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंस। अभी RBI के द्वारा 6 अमेंडमेंट्स ऑफ KYC डायरेक्शंस यहाँ पे लाई गई हैं। KYC होता है नो योर कस्टमर्स, राइट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, राइट। सेक्शन 51A ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज, जो कि UAPA 1967 का एक्ट है, उसको ध्यान में रखते हुए, एंड एग्जिस्टिंग जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको यहाँ पे रिवाइज करने की बात की गई KYC से रिलेटेड। इससे रिलेटेड 6 यहाँ पे नई अमेंडमेंट्स आई हैं, जैसे आपके UCIC कोड का एक्सेप्टेंस, या फिर जो UCIC कोड लेवल है उसके बारे में, यूनिक कस्टमर आइडेंटिफिकेशन कोड के बारे में, एग्जिस्टिंग KYC कंप्लेंट्स के बारे में। देन दूसरा आ जाता है हाई रिस्क अकाउंट मॉनिटरिंग के ऊपर, KYC अपडेशन के ऊपर, KYC रिकॉर्ड्स के ऊपर, चेंजेस इन UAPA प्रोसीजर्स के ऊपर, टर्मिनोलॉजीज अपडेट के ऊपर। तो यहाँ पर ये कुछ KYC गाइडलाइंस आई हैं, आप इनको एक बार PDF से पढ़ सकते हैं।
नेक्स्ट आ जाते हैं, एसबीआई ने रेज किया 5000 करोड़ रुपीज वाया 81 बॉन्ड्स एट 7.98%। 80 क्या है, एडिशनल टीयर 1 बॉन्ड, इसको इशू करने की यहाँ पे बात की गई फॉर करंट फाइनेंशियल ईयर 25 एट अ कूपन रेट ऑफ 7.98%। मतलब 10 साल के लिए ये 81 बॉन्ड्स यहाँ पे इशू किए जाते हैं एंड हर साल यहाँ पे फॉर करंट फाइनेंशियल ईयर जो कूपन रेट दिया गया वो है 7.98% का, राइट। एंड याद रखेंगे ये जो बॉन्ड है ये AA+ रेटेड है, मतलब काफ़ी सिक्योर है। इसके ऊपर और सिक्योर बॉन्ड्स होते हैं वो हैं AAA+ रेटेड, राइट। AAA+ में हाई सिक्योरिटी होती है, राइट। एंड लेकिन इसमें जो रेट मिलेगा ना एज कंपेरेटिवली कम रेट मिलेगा आपको 7.98 से, क्योंकि ये ज़्यादा सिक्योर होते हैं, राइट। AA+ ज़्यादा रेट मिलेगा। अगर ये A+ रेटेड होता तो शायद 7.98 से और ज़्यादा % रेट मिलता। ये BBB होते तो और ज़्यादा रेट हमें देखने को मिलता एंड सो ऑन, ऐसे रेट डिसाइड किया जाता है। ये जो बॉन्ड्स इशू किए गए एसबीआई के द्वारा 3.5 टाइम्स सब्सक्राइब हुए एंड 108 बिड्स यहाँ पर हमें देखने को मिली। नेक्स्ट आ जाते हैं, सेबी ने बार किया OCAL क्या है, वन लाइफ कैपिटल एडवाइजर्स लिमिटेड को एंड इनके प्रमोटर्स को फ्रॉम सिक्योरिटीज मार्केट ओवर फंड डाइवर्जन एलिगेशंस। मतलब इनके ऊपर एलिगेशन लगाए गए हैं कि इन्होंने अपने फंड को डाइवर्स किया है, मतलब गलत जगह पर जहां पे पैसा नहीं जाना चाहिए था वहां पे उस फंड को उनको भेजा, गलत तरीके से लोन दिए गए, गलत तरीके से कंपनी का पैसा ट्रांसफर किया गया दूसरी कंपनीज में, राइट। और इसी के लिए यहाँ पर सेबी ने पेंडो नैग एंड प्रभाकर नैग जो कि प्रमोटर्स हैं वन कैपिटल एडवाइजर्स लिमिटेड के, इनके ऊपर बार लगा दिया, मतलब इनके ऊपर यहाँ पे पनिशमेंट लगा दिया, इनको लगा दिया गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन की। इसमें हम बात करेंगे फुटबॉल से रिलेटेड, राइट। AFC एसोसिएशन ऑफ फुटबॉल कॉन्फेडरेशन, राइट, इनके द्वारा अभी रिसेंटली एशिया के बेस्ट इंटरनेशनल प्लेयर्स का अवार्ड दिया गया है सॉन हेंगविंग एंड एली कारपेंटर को। एली कारपेंटर आपकी कहाँ से बिलोंग करती हैं, लेट मी शो यू बेटर। एली कारपेंटर जो है आपकी ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती है। ये वीमेन इंटरनेशनल प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड से घोषित किया गया AFC के द्वारा। इंटरनेशनल प्लेयर ऑफ द ईयर मेंस की कैटेगरी में सॉन हेंगमिन जो कि साउथ कोरिया से बिलोंग करते हैं। प्लेयर ऑफ द ईयर अकरम अफीफ ऑफ कतर। वीमेंस प्लेयर ऑफ द ईयर कीको साइके ऑफ जापान। कोच ऑफ द ईयर वीमेंस की कैटेगरी में पाक योंग जॉन ऑफ साउथ कोरिया एंड कोच ऑफ द ईयर मेंस की कैटेगरी में गो ओइवा ऑफ जापान। नेक्स्ट, अच्छा एक चीज और, AFC एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन, इनका हेडक्वार्टर कहां पर रहेगा, यह है कुआलालंपुर मलेशिया में। नेक्स्ट आ जाते हैं अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशन पर। डोनाल्ड ट्रंप इलेक्ट किए गए 47th प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, बहुत बड़ी विक्ट्री है इनके लिए। ये पहले 45th प्रेसिडेंट भी बने थे यूएसए के, देन 46th प्रेसिडेंट कौन बने, जो बाइडन, एंड अब वापस से ये 47th प्रेसिडेंट बन गए हैं डोनाल्ड ट्रंप यूएसए के। मार्क करेंगे, काफी बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज है। इन्होंने किनको हराया, कमला हैरिस को इन्होंने फाइनल्स में अपने इलेक्शंस में हराया है एंड देयर इज अ हाई चांस अब आप देखेंगे कि यूएसए की इकोनॉमी भी सुधरती दिखेगी, क्योंकि ये बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, राइट। इनको कैपिटल मार्केट्स में बिजनेस का बहुत बड़ा सेंस है, राइट। एंड कहीं ना कहीं आप देखेंगे इनको बहुत बेनिफिट देखने को मिलेगा यूएसए को इनकी विक्ट्री से। एंड जैसे क्योंकि यूएसए हम जानते हैं बहुत बड़ा देश है, राइट, वर्ल्ड की वन ऑफ द लार्जेस्ट सुपर पावर आता है। तो जब ऐसे हमें इवेंट्स देखने को मिलते हैं ना, जब इनके बड़े लीडर्स चेंज होते हैं, तो पूरे जियोपॉलिटिकल रीजन में आप देखेंगे इसका बहुत बड़ा इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। कहीं के शेयर्स बढ़ेंगे, कहीं की मार्केट गिरेंगी, राइट, क्योंकि इनकी जो पॉलिसीज होंगी वो डिफरेंट होंगी जो एग्जिस्टिंग प्लेयर थे, जो एग्जिस्टिंग प्रेसिडेंट थे जो बाइडन, उनसे। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चेंजेस भी हमें फ्यूचर में देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया S गोपाल कृष्ण को एज द चेयरपर्सन ऑफ SSC के एग्जाम देते हैं आप सब, तो उस SSC के जो नए चेयरपर्सन अपॉइंट किए गए हैं वो हैं 1991 बैच के IAS ऑफिसर S गोपाल कृष्ण। ये किनको सक्सीड करेंगे, ये सक्सीड करेंगे राकेश रंजन को टू बी द न्यू IAS ऑफिसर, टू बी द न्यू चेयरमैन ऑफ SSC। इसी के अलावा एक कुछ और अपॉइंटमेंट्स ध्यान दीजिए, जैसे V उमाशंकर, इनको अपॉइंट किया गया है एज द सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। दूसरी विक्रम देव दत्त, इनको अपॉइंट किया गया है डायरेक्टर जनरल ऑफ DGCA। देन तन्मय कुमार, इनको अपॉइंट किया गया है स्पेशल सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। एंड सुब्रता गुप्ता, इनको अपॉइंट किया गया सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड
इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट आ जाते हैं एक्विजिशन एंड मर्जर्स पे। डायरेक्टली याद रखेंगे, अभी कौन एक्वायर कर रहा है? फोर्टिस हेल्थकेयर लिमिटेड, ये एक्वायर कर रहे हैं एगिलस को। कितना परसेंट? 31.52% यहाँ पे एक्वायर करेंगे। और इस एक्विजिशन के बाद जो फोर्टिस के पास शेयर हो जाएगा एगिलस डायग्नोस्टिक्स का, वो है 89.2% का इनके पास शेयर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर, नेक्स्ट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। हम जानते हैं चाइना के जो स्पेस स्टेशन है उसका नाम क्या है? टिएंगोंग स्पेस स्टेशन। एंड इस पर अभी 3 नए क्रू मेंबर्स भेजे गए हैं। 6 महीने के लिए क्रू मेंबर्स यहाँ पे टिएंगोंग स्पेस स्टेशन पे भेजे गए हैं। कौन है ये 3 क्रू मेंबर्स? ये है काई यूही, सोंग लिंगडोंग एंड वोंग हाउजी, राइट। तो 2 मैन एंड 1 वीमेन को यहाँ पे भेजा गया है। इन एस्ट्रोनॉट्स को 6 महीने के ये मिशन पे रहेंगे। एंड स्पेसक्राफ्ट को जिससे ये भेजे गए वो थे शेंगजू 19 एंड लॉन्ग मार्च 2F कैरियर रॉकेट से इसको भेजा गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेज पर आ जाते हैं। नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे 7 नवंबर को ऑब्जर्व किया जाता है टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट कैंसर, उसके डिटेक्शन के बारे में, प्रिवेंशन के बारे में, उसके ट्रीटमेंट के बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। एंड 2014 में इसको पहली बार ऑब्जर्व किया गया था, फर्स्ट एवर टाइम इसको ऑब्जर्व किया गया था। एंड इसको आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एक लेवेंडर रिबन है, राइट, दिस इज लेवेंडर कलर। तो लेवेंडर रिबन यहाँ पे सिंबल रहेगा आपका नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे का, राइट। अगर मैं बात करूँ ब्रेस्ट कैंसर के लिए तो पिंक रिबन होता है, राइट। लंग कैंसर के लिए आपका पर्ल या फिर व्हाइट रिबन होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टेट न्यूज के ऊपर। तो अभी रिसेंटली नागालैंड की जो 17वीं डिस्ट्रिक्ट बनी है ऑफिशियली वो है मेलूरी, राइट। मार्क करके चलेंगे, मेलूरी ऑफिशियली 17वीं डिस्ट्रिक्ट बन गई है नागालैंड की। यहीं पे याद रखेंगे मेलूरी डिस्ट्रिक्ट में कौन सी ट्राइब्स रहती है? वो है पोचुरी नागा ट्राइब, राइट। ये आपकी मेलूरी में रहती है जो कि 17वीं डिस्ट्रिक्ट बनी है नागालैंड की। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ पे। मेलूरी के अंदर 31 विलेजेस आते हैं। 1011 स्क्वायर किलोमीटर का यहाँ पे एरिया हमें देखने को मिलता है। एंड एक और चीज, यहाँ पे नागालैंड के गवर्नर कौन है? ला गणेशन, चीफ मिनिस्टर नेफ्यू रियो। एंड नागालैंड में एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है इन टांकी नेशनल पार्क। तो दोस्तों ये तो था हमारा आज का कंटेंट। अब आ जाते हैं क्विक वन लाइनर रिवीजन पर। 17वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो की बात करें तो गांधीनगर गुजरात में। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने यूनियन मिनिस्टर ऑफ डिफेंस राजनाथ सिंह ने लॉन्च किया आदिति 3.0 चैलेंज एंड DISC 13 को ड्यूरिंग स्वावलंबन 3.0। इंडियन रेलवेज ने MOU साइन किया स्विट्जरलैंड के साथ फॉर टेक्निकल कोऑपरेशन। ऑस्ट्रेलिया सेलेक्टेड एज द कंट्री ऑफ फोकस फॉर IFFI 2024। ब्राजील सेकेंड ब्रिक्स कंट्री बन गई है टू नॉट ज्वाइन चाइनाज BRI। पहली कौन सी थी? हमारी इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने MOU साइन किया इलेक्टोरल कॉर्पोरेशन ऑफ उज्बेकिस्तान के साथ। इलेक्टोरल कॉर्पोरेशन के ऊपर मतलब इलेक्शन के ऊपर कॉर्पोरेशन साइन किया उज्बेकिस्तान की सेंट्रल इलेक्शन कमीशन के साथ। देन RBI मेक्स 6 अमेंडमेंट KYC डायरेक्शंस। SBI ने रेज किए 5,000 करोड़ विद 81 बॉन्ड्स एट 7.98%। देन सेबी ने बार किया मतलब रोक लगाया OCEL पे एंड इनके प्रमोटर्स पे फ्रॉम सिक्योरिटीज मार्केट ओवर फंड डाइवर्जन एलिगेशन। AFC अवार्ड ने दिया शॉन हुएंग मिन को एंड एली कारपेंटर को एज द एशियाज बेस्ट इंटरनेशनल प्लेयर। देन डोनाल्ड ट्रंप ये 47th प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए हैं USA के। ये किनको रिप्लेस करेंगे या किनको सक्सीड करेंगे? जो बाइडेन को। देन गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया S गोपाल कृष्णन को एज द चेयरमैन ऑफ SSC। देन CCI ने एक्विजिशन का अप्रूवल दिया ऑफ एडिशनल बाय आउट ऑफ 3.52% स्टेक ऑफ एगिलस डायग्नोस्टिक्स। किसके द्वारा? फोर्टिस हेल्थकेयर लिमिटेड के द्वारा। देन चाइना ने लॉन्च किया शेंगजू 19 विद 3 न्यू क्रू टू इट्स टिएंगोंग स्पेस स्टेशन। 6 महीने के लिए क्रू जाएगा टिएंगोंग स्पेस स्टेशन पे। देन नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे 7 नवंबर एंड मेलूरी ये 17वीं डिस्ट्रिक्ट अपॉइंट की गई है नागालैंड की। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स एंड उनकी क्विक रिवीजन। अब आ जाते हैं कुछ और रिवीजन पार्ट पर जो कि आपकी लर्निंग में काफी हेल्प करेगा। नेक्स्ट, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इन्होंने 18 नए मेंबर्स को इलेक्ट किया टू विच ऑर्गेनाइजेशन फॉर टर्म 25 to 27। 3 साल के लिए इनको यहाँ पे अपॉइंट किया जाएगा। तो किसके अंडर कहाँ पे अपॉइंट किया जाएगा इनको? यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल में ऐड किया जाएगा। UNGA के द्वारा ऐड किए गए 18 नए मेंबर्स। नेक्स्ट, हु हैज रिसेंटली टेकन ओथ एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा। तो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर कौन अपॉइंट किए गए हैं? नए
वो है नायाब सिंह सैनी। इससे पहले मार्च से लेके अक्टूबर 2024 तक भी ये अपॉइंट किए गए थे। आफ्टर मनोहर लाल खट्टर इन्होंने रिजाइन कर दिया था अपनी पोजीशन से, एंड ये इनका सेकंड टर्म रहेगा। मोहन चरण मांझी की बात करें तो ये चीफ मिनिस्टर हैं कहाँ के, उड़ीसा के। मोहन यादव की बात करें मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, राइट। नेक्स्ट ओके, पीयू लाल दुहोमा ये कहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, मिजोरम के। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली रेज किया शेयर होल्डिंग इन बैंक ऑफ महाराष्ट्र फ्रॉम 4.05 टू 7.1% थ्रू QIP। तो किन के द्वारा ऐड किया गया, ये LIC इंश्योरेंस के द्वारा रेज किया गया शेयर होल्डिंग इन बैंक ऑफ महाराष्ट्र फ्रॉम 4.05% टू 7.1%। नेक्स्ट, किस डिवीजन में, विच डिवीजन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिसेंटली अनाउंस द पार्टनरशिप ऑफ उमंग ऐप विद डिजिलॉकर टू प्रोवाइड सिटीजन्स इजी एक्सेस, ताकि जो सर्विसेज सरकार देती है उनको वो सर्विसेज का लाभ मिल सके। तो वो है नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन। एंड ये जो उमंग ऐप है बेसिकली एप्लीकेशन है जो कि सिटीजन्स को एक्सेस प्रोवाइड कराती है कि जो भी सरकार सर्विस दे रही है एंड इन्फॉर्मेशन दे रही है वो इन तक पहुंच सके। नेक्स्ट, आपको बताना है कौन सा इनमें से सही है विद रिस्पेक्ट टू यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन 16 अक्टूबर। यहाँ पे देखें तो ऑप्शन बी एंड सी सही है, ए गलत है। ए कह रहा है कि सरकार के द्वारा 5% DA एंड DR में इंक्रीज कर दिया गया अभी पेंशनर्स, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए, पेंशनर्स के लिए। तो नहीं, 5% नहीं 3% का इंक्रीज इस बार देखने को मिला है। नेक्स्ट, किस CPSE को अभी रिसेंटली अपग्रेड कर दिया गया एज द 14th महारत्ना CPSE बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो ये कौन सी रहेगी, ये है आपकी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हॉल। पहले ये आपकी क्या थी, ये एक नवरत्ना थी और अब इसको अपग्रेड कर दिया टू महारत्ना CPSE एंड ये 14th महारत्ना बन गई है। इवन याद रखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने यहाँ पे एक 26,000 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था हॉल के साथ फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ 240 AL-31 FP एरो इंजन्स फॉर सुकोई 30 Mark 1 फाइटर जेट। नेक्स्ट, किस सेंचुरी को अभी नेम किया गया, डिक्लेयर किया गया 8वां टाइगर रिजर्व ऑफ मध्य प्रदेश। तो वो है रतापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड ये 8वीं टाइगर रिजर्व बन गया है, कहाँ का, मध्य प्रदेश का। ठीक, नेक्स्ट आ जाते हैं, किस कंपनी ने रिसेंटली साइन किया एक बिजनेस टू बिजनेस फ्रेमवर्क अग्रीमेंट विद नेपाल ऑयल कॉर्पोरेशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पेट्रोलियम इंफ्रास्ट्रक्चर नेपाल में। तो ये है IOCL ने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है एंड एक 50 किलोमीटर की पेट्रोलियम पाइपलाइन भी कंस्ट्रक्ट की जाएगी सिलीगुड़ी इन इंडिया से लेके चराली इन नेपाल तक। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली रिवील किया दैट इंडिया हैज 129 मिलियन सिटीजन्स जो कि एक्सट्रीम पॉवर्टी में जी रहे हैं। तो ये किसके द्वारा डाटा आया, ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा डाटा रिलीज किया गया है। नेक्स्ट, किस स्टेट ने रिसीव किया $42 मिलियन का लोन एशियन डेवलपमेंट बैंक से, ताकि जो कोस्टल और रिवर बैंक एरियाज हैं उनको वहां पे जो इकोसिस्टम है, बायोडाइवर्सिटी है, उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। तो महाराष्ट्र स्टेट ने ये $42 मिलियन का अमाउंट लोन रिसीव किया है फ्रॉम एशियन डेवलपमेंट बैंक, ताकि वहां पे जो कोस्टल एरियाज है, रिवर बैंक्स है, जो आपका बायोडाइवर्सिटी का इकोसिस्टम है, उसको प्रोटेक्ट करा जा सके। देन यहीं पे याद रखेंगे मेघालय को भी अभी एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा $50 मिलियन का लोन मिला था वाटर हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट्स के लिए। नेक्स्ट, नेम द स्पेनिश टेनिस प्लेयर हु हैज रिसेंटली अनाउंस्ड हिज डिसीजन टू रिटायर फ्रॉम प्रोफेशनल टेनिस आफ्टर द डेविस कप। डेविस कप आपका टेनिस से रिलेटेड करता है, ये कहाँ खेला जाएगा, स्पेन में खेला जाएगा एंड जो पर्सन हम बात कर रहे हैं रिटायर होंगे वो भी स्पेन के ही प्लेयर है, इनका नाम है राफेल नडाल। नेक्स्ट, हु हैज रिसेंटली टेकन चार्ज एज द 26वें डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड। तो कौन बन गए हैं, वो है परमेश शिवामणि, ये 26वें डायरेक्टर जनरल बन गए हैं इंडियन कोस्ट गार्ड के। नेक्स्ट, किनको अभी रिसेंटली स्वॉन इन किया गया, 8th प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया। तो 8वें प्रेसिडेंट कौन बने हैं इंडोनेशिया के, वो है प्रोबावो सुबियांतो, ये 8वें प्रेसिडेंट बने हैं इंडोनेशिया के। नेक्स्ट, किन्होंने रिसेंटली अपॉइंटेड या किनको अपॉइंट किया गया एज द चेयरमैन ऑफ सर रतन टाटा ट्रस्ट सक्सीडिंग हिज हाफ ब्रदर रतन टाटा। नोएल नवल टाटा अभी नए चेयरमैन बने हैं और सर रतन टाटा ट्रस्ट के। नेक्स्ट, किस इंश्योरेंस कंपनी ने अभी रिवाइज किया अपर लिमिट फॉर परचेजिंग द न्यू एंडाउमेंट प्लान फ्रॉम 55 ईयर्स टू 50 साल तक। तो वो है LIC इंश्योरेंस ऑफ इंडिया या फिर LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, किस मिनिस्ट्री ने इंप्लीमेंट किया PM गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान एंड इन्होंने 3 साल पूरे हो गए हैं इस स्कीम के ऑन 13 अक्टूबर 2024। तो गति शक्ति PM गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान का एम क्या है, बेसिकली लॉजिस्टिक सेक्टर को इंप्रूव करना, राइट। एंड ये किस मिनिस्ट्री ने इंप्लीमेंट किया था, तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा इंप्लीमेंट इसे करा गया था।
नेक्स्ट है किस कंपनी ने रिसेंटली लॉन्च किया MPV मल्टीपर्पज वेसल यार्ड नंबर 18001 जिसका नाम रहेगा INS समर्थक इन चेन्नई तमिलनाडु। तो किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया इसको? L&T के द्वारा इसको यहाँ पे लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, किस मिनिस्ट्री ने रिसेंटली सेलिब्रेट किया कंप्लीशन ऑफ 2 years ऑफ टेलीमानस? सबसे पहले आपको ये टेलीमानस पता होना चाहिए क्या है। टेलीमानस है टेली मेंटल हेल्थ असिस्टेंस एंड नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेट्स। ये लॉन्च किया गया था वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के दौरान, राइट। एंड यहाँ पे टेलीमानस ये 24/7 फ्री मेंटल हेल्थ सपोर्ट प्रोवाइड कराता है विद फोन बेस्ड सर्विसेज, ठीक है। किस मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया? तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। नेक्स्ट, किस कंट्री ने रिसेंटली रिसीव किया पहला फर्स्ट एवर रुपी डिनोमिनेटेड लाइन ऑफ क्रेडिट वर्थ 487.6 करोड़ रुपीस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये रिसीव हुआ है। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इतना अमाउंट दिया किस कंट्री को इन द फर्स्ट एवर रुपी डिनोमिनेटेड लाइन ऑफ क्रेडिट? तो मॉरिशियस को ये अमाउंट यहाँ पे दिया गया है। एंड इस इनिशिएटिव के अंदर इस पैसे के साथ 100 किलोमीटर की जो पुरानी पाइपलाइंस है मॉरिशस में उनको रिप्लेस किया जाएगा। नेक्स्ट, नेम द इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट हु टॉप द फॉर्ब्स इंडिया 100 रिचेस्ट 24 लिस्ट पब्लिश्ड इन अक्टूबर। ये आपका होमवर्क है स्टूडेंट्स, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आप हमारी वीडियोस डेली बेसिस पे देख रहे हैं तो आप इस क्वेश्चन को इजीली अटेम्प्ट कर लेंगे। नेक्स्ट, किस कंपनी ने रिसेंटली एक्सपेंड किया 4 year कोलैबोरेशन विद USA बेस्ड ओल्ड नेशनल बैंक के साथ? तो किन्होंने अभी रिसेंटली एक्सपेंड किया है इट्स 4 year कोलैबोरेशन विद USA बेस्ड ओल्ड नेशनल बैंक, वो है इन्फोसिस, राइट। इसी के अलावा अगर मैं आपसे पूछूं अभी किस कंट्री को FTSE एमर्जिंग रसल्स एमर्जिंग मार्केट गवर्नमेंट बॉन्ड इंडेक्स में ऐड करने की बात की गई, सितंबर 2025 में ये कंट्री ऐड हो जाएगी, वो है हमारी इंडिया, राइट। टेक अ नोट ऑफ दिस, इंडिया हमारी यहाँ पे ऐड होने वाली है और इंडिया 3rd इंडेक्स हो जाएगा ये इंडिया जिसमें अभी ऐड किया जा रहा है फॉरेन एमर्जिंग मार्केट इंडेक्स जो है। नेक्स्ट, वेयर वॉज द 44th सेशन ऑफ द कॉडेक्स कमिटी ऑन न्यूट्रिशन एंड फूड्स फॉर स्पेशल डायरेटरी यूजेस 2024 है? तो ये कहां पर हुआ था? ड्रेसडेन जर्मनी में हमें देखने को मिला था। नेक्स्ट, अभी जो नीति आयोग का एसेट मोनेटाइजेशन का टारगेट है ना उसको बढ़ा दिया है। कब तक बढ़ा दिया नीति आयोग ने? फॉर FY25 कितना कर दिया है? $1.9 ट्रिलियन का कर दिया, ये भी याद रखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली रिटेन किया इंडिया की GDP फॉरकास्ट फॉर FY25 टू 7%? ये किसके द्वारा रखा गया है यहाँ पर? ये है वर्ल्ड बैंक के द्वारा डाटा स्टेट किया गया। अगर यहीं पे मैं मूडीज की बात करूं तो मूडी ने प्रोजेक्ट किया इंडिया FY25 के लिए एट 6.6% GDP ग्रोथ रेट, राइट। SBI ने भी प्रोजेक्ट किया कि इंडिया 7% से ग्रो करेगा FY25 में। नेक्स्ट, WTO इन्होंने रिड्यूस कर दिया अपना प्रोजेक्शन ऑफ वर्ल्ड मर्चेंडाइज ट्रेड ग्रोथ टू जस्ट 3%। पहले ये 3.3 प्रोजेक्ट कर रहे थे लेकिन अब वापस 3% यहाँ पे इनके द्वारा कर दिया गया है। नेक्स्ट, हु हैज रिसेंटली स्worn इन एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? तो वो है ओमार अब्दुल्ला एंड फॉर द सेकेंड टाइम इनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया है एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ UT जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट है किस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने भी एंटर किया या हैज रिसेंटली अपॉइंटेड ओलंपिक बॉक्सर मैरी कॉम एंड फॉर्मर कैप्टन ऑफ इंडियन फुटबॉल टीम सुनील छेत्री एज देयर ब्रांड एम्बेसडर? तो वो है उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के द्वारा इनको अपॉइंट किया गया यहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली जो कि भारत मंडप में हुई इन न्यू दिल्ली? तो यहाँ पे अगर हम देखें तो तीनों ऑप्शन यहाँ पर आपके बिल्कुल ठीक रहेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस मिनिस्ट्री ने रिसेंटली लॉन्च किया ई-श्रम वन स्टॉप सॉल्यूशन प्लेटफॉर्म ताकि जो वेरियस सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए उनको उनका बेनिफिट मिल सके। इस पोर्टल पे 16 से 59 एज के बीच में जो भी अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हैं वो यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं ई-श्रम पोर्टल पर एंड सरकार के द्वारा जो भी स्कीम्स लॉन्च की जाती है इनके वेलफेयर के लिए उसका ये बेनिफिट यहाँ से ले सकते हैं। तो पूछा जा रहा है किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया ई-श्रम पोर्टल? तो ये लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा। नेक्स्ट, किस बैंक ने रिसेंटली लॉन्च किया महिला सक्षम स्कीम को टू एम्पावर वीमेन एंटरप्रेन्योर्स? तो किस बैंक ने लॉन्च किया है महिला सक्षम स्कीम को? तो इंडियन ओवरसीज बैंक के द्वारा यहाँ पे लॉन्च किया गया है महिला सक्षम स्कीम को ताकि वीमेन एंटरप्रेन्योर्स को यहाँ पे बेनिफिट दिया जा सके। लखपति दीदी योजना के अंडर इनको प्रमोट किया जा सके एंड इसके अंडर हम देखेंगे कि 75,000 से लेके 10 लाख रुपए तक का लोन्स यहाँ पर ये वीमेन एंटरप्रेन्योर्स ले सकती हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स होमवर्क सेक्शन पे। सबसे पहले आप मेरे को बताओ
अभी रिसेंटली हरियाणा के चीफ मिनिस्टर कौन अपॉइंट किए गए हैं और इन्होंने किन को सक्सीड किया। देन अभी सागर कवच एक्सरसाइज हुई थी। सागर कवच किसके द्वारा होस्ट की गई थी एंड किसके द्वारा इस एक्सरसाइज को किन के द्वारा इसमें पार्टिसिपेशन करा गया था एक्सरसाइज में, राइट। एंड लोकेशन भी बताओ सागर कवच एक्सरसाइज का हुआ कहां था। देन इसी के साथ अभी रिसेंटली बताओ किन्होंने आर्चरी वर्ल्ड कप में अभी गोल्ड मेडल जीता, या फिर आर्चरी वर्ल्ड कप में इंडिया से किन्होंने यहां पे मेडल जीता, ये बताओ, राइट। जरा कमेंट करके बताओ आर्चरी से किन्होंने जीता। एक और बताओ इसी के साथ साथ कि यूएस ओपन टाइटल किन के द्वारा जीता गया, यूएस ओपन टाइटल किन के द्वारा जीता गया। तो ये 4 आपके होमवर्क क्वेश्चंस रहेंगे स्टूडेंट। सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना एंड होमवर्क ज़रूर अटेम्प्ट करा करो, बहुत अच्छी रिवीजन हो जाती है आप सभी की। इस होमवर्क से आपका काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। एंड अगर आप नए जुड़े हैं स्टूडेंट्स तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। वी आर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर करंट अफेयर्स। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, कजन्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, पेरेंट्स के साथ। एंड अगर आप डेली बेसिस पे भी हमारी वीडियो देखेंगे ना तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, काफ़ी कुछ आपका रिवाइज होगा डेली बेसिस पे, काफ़ी कुछ नई चीज़ें आपको यहाँ पे पता लगेंगी जो हम आपको बताएंगे। एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर्सपेक्टिव से अगर आप देखेंगे तो बहुत ही कुछ आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगा। दैट्स ऑल फॉर द डे स्टूडेंट्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।